ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है ये? इसमें कहा गया है आपसे इफ a equals to 1 2 3 4 5 then find the number of elements in the power set of a। चार ऑप्शन दिए हैं देखो। फर्स्ट ऑप्शन इज 30, सेकंड ऑप्शन इज 32, थर्ड ऑप्शन इज 16 and fourth option is 64। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सॉल्यूशन इज क्या है बताइए। गिवन क्या है? गिवन सेट A equals to 1 2 3 4 and 5। therefore कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A कितना हो गया? 5। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितना हो गया? 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A। therefore कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A means all possible subsets of set A means raised to 5 means 30। this is the correct answer। okay friends, I hope ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेवल कर लेते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6। ये सेट था अपना। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? इफ A and B are any two, if A and B are any two non-empty, if A and B are any two non-empty sets, and A is and capital A is proper subset of B, proper subset of B, full stop। if cardinal number of A equals to 5, if cardinal number of A equals to 5, then minimum possible value of minimum possible value of cardinal number of A symmetric difference B H, A symmetric difference B H। चार ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला 1 2 3 and okay friends, क्या है? if A and B are any two non-empty sets, if A and B are any two non-empty sets and A is proper subset of B, if cardinal number of A equals to 5, then minimum possible value of A symmetric difference B is cardinal number of A symmetric B। देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। इधर साफ कर देते हैं। देखते हैं अपन यहाँ पे। और कार्डिनल क्या क्या है? A and B are any two non-empty sets and A is proper subset of B। और solution is if A is proper subset of B, if A is proper subset of B, therefore A is subset of B and A not equal to B, it means what? B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि A का मेंबर नहीं है। और कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना दिया गया है? 5। तो फॉर मिनिमम वैल्यू कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या हो जाएगा? 6, जिसमें 5 एलिमेंट क्या होगा? कॉमन। क्या बोला उसने?
if A and B are A is two non-empty sets and A is proper subset of B and cardinal number of is 5, then minimum possible value of this. अच्छा इसकी minimum value कब मिलेगी? जब अपने को सेट B की minimum value मिलेगी और सेट B की minimum value क्या हो जाएगी? सेट cardinal number of B की minimum value क्या होगी? कम से कम एक एलिमेंट में ऐसा होगा, therefore A minus B क्या हो जाएगा? 0 नल सेट A माइनस B क्या हो जाएगा? नल सेट और B माइनस A क्या हो जाएगा? सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट सिंगलटन। देखिए ऐसा सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट सिंगलटन। therefore cardinal number of A minus B 0 and cardinal number of B minus A 1. therefore cardinal number of A symmetric equals B is equal to cardinal number of A minus B plus cardinal number of B minus A equals to 0 plus 1 equals to 1. This is the answer. Minimum value from any cardinal number of A and B 1. This is the answer. Then important question बिल्कुल इसे कंसंट्रेट कीजिए, समझिए कैसे हो चाहिए। एक बार आप देखिए फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ। अब अपन नेक्स्ट में को देखते हैं। तो मैं हटा रहा हूं। Next page. Let Z be the set of all integers. Next question is let Z be the set of all integers. Let Z be the set of all integers and capital A equals to AB such that A square plus 3B square such that A square plus 3B square equals to 28, comma A comma B belongs to Z. A comma B belongs to Z. B equals to AB such that A greater than B, comma A comma B belongs to integer. Then cardinal number of A intersection B. Then cardinal number of A intersection B is equal. And cardinal number of A intersection B is equal to first option 1, second option 6, third option 3, and fourth option 8. Let Z is the set of all integers and A equals to AB such that A square plus 3B square equals to 28, comma AB belongs to integer. A equals to AB such that A greater than B or AB belongs to integer. Then cardinal number of A intersection B is equal to. इसको हम करते हैं फ्रेंड। सॉल्यूशन इज क्या था? सेट जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को बता रहा था। सेट ए क्या है? गिवन क्या है अपने को? सेट ए इक्वल्स टू A comma B
such that a square plus 3b square equal to 28. A comma b belongs to मतलब क्या है सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर सेट ए बी है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है ए बी इंटीजर देखो अगर ए बी इंटीजर अपने को डिफरेंट साइन से वैल्यू दो की तरह जैसे ए की वैल्यू 0 ले लिया बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं 28 का पूरे का भी क्यों देखिए 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 12 3 का स्क्वायर 9 27 अब 1 अगर अपन लेते हैं ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए 1 3 एक से पड़ेगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 20 और -1 -3 भी स्क्वायर है पहला दूसरा क्या ले सकते हैं अगर आप 2 लेते हो इसको क्या होना पड़ेगा 4 मतलब यहाँ से क्या चाहिए 24 जो कि नहीं से दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या 3 है और अपन 2 ले लिए क्या हो जाएगा 2 या 4 4 3 या 12 और ये को ले सकते हैं तो अब 1 0 ले लिया 0 से साइड में 1 -2 है 3 चलेगा क्या 3 3 या 9 और फिर चाहिए क्या 9 है तो 18 चाहिए नहीं 9 है तो 19 चाहिए नॉट पॉसिबल लेकिन चलेगा 4 चलेगा क्या 4 4 जा 16 और 12 हाँ 12 चल जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 3 जा 12 16 और 12 28 -4 -2 भी चलेगा कितने हो गए अब 1 से क्या किया -1 किया गया 2 से सेटिस्फाई है 2 का 4 24 चाहिए मतलब ये वैल्यू क्या है 24 स्क्वायर नहीं है इसका तो 3 चाहिए 3 का 9 और 19 आपको मतलब 4 4 या 16 और 12 चाहिए कि 4 होना ठीक है चलेगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना चाहिए 3 चलेगा 5 comma 1 और -5 comma 1 5 comma -1 -5 comma 1 और -5 comma -1 वैसे ही 1 comma 3 1 comma -3 -1 comma 3 और -1 comma -3 ठीक है 4 comma 2 4 comma -2 -4 comma 2 and all this मतलब 4 पॉसिबल बना यार 1 2 3 4 1 2 3 4 आई थिंक और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी है 5 का 25 भी चाहिएगा ये प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनाया अगर अपन 6 ले लिए एक्टिव करें ये राइट और दूसरा क्या ये सेट ए है सेट बी यहाँ होना क्या है अपन क्या होगा अपने ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी और ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर ए जो है बी से क्या है बड़ा है इसको ऐसे ही जाने देते हैं ए बी ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर A comma B belongs to integer. A B such that A greater than B, A belongs to Z. Then cardinal number of A intersection B. Cardinal number of सबसे पहले मैं निकालता हूँ A intersection B क्या हो जाएगा देखो यार अपने को वो पेयर ढूंढना है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड है A greater than B ये नहीं है A greater than B -1 greater than -3 राइट 4 ग्रेटर देन 2 चलेगा -4 ग्रेटर देन नॉट पॉसिबल चलेगा 5 ग्रेटर देन 1 देन 5 ग्रेटर देन -1 देन -5 ग्रेटर देन नो 1 greater than -3 yes
-1 greater than -3, -1 -4 greater than 3, no. 4 greater than -2, yes. और -4 greater than 2, no. Total number of elements कितने हुए? 1 2 3 4 5. Therefore cardinal number of A intersection B equal to कितना हो गया? फ्रेंड थोड़ा सा टाइम स्केल प्रॉब्लम है, सब में है। आप चाहो तो बना सकते हो, मैंने आपके सामने ही किया है। थोड़ा सा स्कूल होगी, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, कौन सी चीज की डिमांड की गई है वो आपको लिखना पड़ेगा, और फिर जाके अपन जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल बनेगा, राइट। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके बाद वाला आंसर क्या होगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, sorry, question number, if A means power set of A equal to power set of B, then if power set of A equal to power set of B, then first option A is subset of B, second option B is subset of A, third option A equal to B, and fourth option all are true, and fourth option all are true, all are। देखिए क्या क्या है सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन क्या है? पावर सेट ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑफ बी। गिवन पावर सेट ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑफ बी, ये दिया हुआ है। ए का पावर सेट बी के पावर सेट से इक्वल है। कब पॉसिबल है? या ये भी हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो। तो देखो अगर a इक्वल टू बी है तो फिर 2 है, थर्ड वाला केस है। a और b के इक्वल है, a b का सबसेट भी हो सकता है और b a का सबसेट भी हो सकता है। नहीं, ऑल आर ट्रू। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज next question is which of the following is true? Which of the following is true? Which of the following which of the following is true? First option पहला, set containing element 2 belongs to set containing element 1 2। दूसरा, 5 belongs to 1 2 and 3। तीसरा, set containing element 1 2 belongs to 1 set containing 2 3। set containing element 1 2 belongs to set containing element 1 set containing 2 and 3, and 4 0 belongs to set containing the element 0 1 and 8। देखते हैं अपन कैसे करेंगे अप्रोच। सॉल्यूशन इज set containing element 2 belongs to set containing element 1 2 3 solve। ये 2 इसमें क्या एलिमेंट है ना कि set containing 2 इसका एलिमेंट, ये नहीं होगा। null set belongs to
Sets containing the element 1 ignore. Sets containing the element 1 2 belongs to 1, 2, 3. No. 0 belongs to sets containing the element 0, 1. Yes. This is the correct answer. This is the correct answer. Okay, friends. Now next is if cardinal number of base equals to 20, comma cardinal number of base equals to 18 and cardinal number of A intersection B equals to 5. Cardinal number of A equals to 20, cardinal number of B equals to 18, and cardinal number of A intersection B equals to 5. Then cardinal number of A minus B is 4 ऑप्शन है. पहला वाला 13, दूसरा वाला 12, तीसरा वाला 15 और चौथा वाला 20 नहीं 18 है ना. 13, 12, 15 और 18. ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ. पहले तो मैंने बताया आपको 2-3 मिनट तक, वो देखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट मिनट में डिस्कस करके बताता हूँ. ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका सॉल्यूशन. Please friends, both ways. Cardinal number of A कितना है? Solution given cardinal number of A equals to 20, comma cardinal number of B equals to 18, and cardinal number of A intersection B equals to 5. Then A minus B. तो अपने को क्या चाहिए? कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B क्या होगा? तो एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम. ये सेट A है और ये सेट B है. सेट A सेट B. A इंटरसेक्शन B कितना है? 5. और कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है? 20. ये कितना हो जाएगा? 15. और कार्डिनल ऑफ B 18 है. B कितना हो जाएगा? Therefore, डायग्राम से क्लियर है. कार्डिनल नंबर ऑफ A minus B is 15 and cardinal number of B minus A equal to 7. Therefore, correct answer is third option. I hope friends आपको ये वेन डायग्राम मदद से आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन नेक्स्ट नंबर को देखते हैं. इसके बाद वाला देखिए. If cardinal number of A 50, if cardinal number of A equals to 50, comma cardinal number of A equals to 20, comma cardinal number of A and B complement is 18. Then B minus cardinal number of B minus A is. चार ऑप्शन दिए हैं आपको. पहला 14, दूसरा 12, तीसरा 16,
14, 12, 16, and fourth one is 10. Okay. Solution is given cardinal number of 8, 15, cardinal number of 8, 20, and cardinal number of, which is cardinal number of A and B complement equal to 80. और इसको भी अपन वेन डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम से इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया cardinal number of total 50, एक में 20 और मान लो ये सिर्फ A है और ये सिर्फ B है, ये A है और ये B है। अब क्या करा गया है, A and B कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट A and B, मतलब क्या, दिस रीजन plus this region plus 2 equals to क्या है 50, नहीं equals to 80 तो टोटल कितना है 50 है, टोटल कितना है 50 है और कार्डिनल नंबर ऑफ, टोटल कितना है मैं क्या आया 50, कार्डिनल नंबर ऑफ कितना है 50, कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है 20, मेरे मान लो A and B x है, ये कितना हो गया 20 minus x और कार्डिनल नंबर ऑफ नॉट A and B, नॉट A and B का मतलब क्या होता है, A and B का मतलब हो गया ये रीजन और नॉट A and B का मतलब इस रीजन को छोड़ के, मतलब दिस रीजन प्लस 20 minus x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B minus A प्लस दिस ओनली है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन कार्डिनल नंबर ऑफ नाइदर A नॉट B, नहीं कार्डिनल नंबर ऑफ नाइदर A नॉट B बोल सकते हैं। पर इसको यार अगर मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बोलूं, इतना मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ये इजीली हो जाएगा। ये देखो कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब कहते हैं इसका मतलब हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ A और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, डायरेक्टली बन गया है ये 80, कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना है 50 और माइनस 80 इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A and B कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ A and B कॉमन एलिमेंट कितना है 50 और माइनस 80, 32 पॉसिबल नहीं है यार, कैसे पॉसिबल है, एक मिनट cardinal number of A and B is 50, cardinal number of A, cardinal number of ये 50, cardinal number of A 20, cardinal number of A, B and B complement 18, अरे यार सॉरी A and B complement है भाई, ठीक है अब बन जाएगा A and B complement है, ठीक है, cardinal number of A and B complement equal to 18, this implies cardinal number of A minus cardinal number of A and B equal to 18, and this implies cardinal number of क्या है 50 minus cardinal number of A and B
equal to 18. Therefore, cardinal number of A union B equals to 32. राइट, ये क्लियर है आप लोगों को? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनिट कितना आ गया 32। अब अगर डायग्राम बनाए अपन देखिए तो ये वाला रीजन और ये कार्डिनल नंबर ऑफ 50। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 20। अगर मान लो ये x है, ये 20 माइनस x होगा और मुझे ये चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए y। मुझे क्या चाहिए y। मुझे बताइए आप लोग कि this plus this इक्वल टू 30 हो जाएगा। 20 माइनस x प्लस x प्लस y इक्वल टू 32। ये दिया गया y की वैल्यू क्या आ गई 12। y की वैल्यू क्या आ गई 12। मतलब ये अगर 12 आ गया और ये 20 है तो 12 और 20 मतलब ये दो ये ओनली 20 है ना। 1 ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस a इक्वल टू। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसकी बात का। देखिए क्या है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लेटर को आपको एक बार फिर से देखिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले आपको देखिए ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड देखिए बोर्ड पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बोर्ड को और फिर मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट मेथड कहा गया है जैसे if a set has two elements then the difference between the equation नोट कर रहा हूँ लिख ले रहा हूँ। देखिए if a set has two elements if a set has two elements then the difference between the subset of its power set and the difference between the subset of its power set, the subset of its power set and number of its subset is and number of its subset is and number of its subset is। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 10 एंड लास्ट ऑप्शन 12। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपन सॉल्यूशन। if a set A has two elements, मान लेते हैं set A है, therefore calculate cardinal number of A, then the difference between the subsets of its power set। मतलब let
let B be the number, then you can do the subset of its power set. Now the power set होगा if a set has two elements, then the difference between the subset of its power set and the number of its subset is power set equivalent to power set of A. Cardinal number of power set of A कितना हो जाएगा 2 means 4. Therefore अब क्या difference between the subset of its power set, subset of its power set से चार एलिमेंट हैं जिसके सबसेट कितने हो जाएंगे 2 Therefore subset of power set of A equals to, therefore subset of power set of A equals to 2 is to 4 means 16 and the number of its subsets and subset of at A equal to 2 is to 2 means 4. Therefore required answer is 16 minus 4 equal to फ्रेंड्स आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब अपन कैसे न्यूमेरिकल इसको बोलते हैं क्या है if set A has 3 elements, if set A has 3 elements and set B has 6 elements and set B has 6 elements, then if set A has 3 elements and set B has 6 elements, then first option cardinal number of A intersection B greater than equal to 6 less than equal to 8. Second, cardinal number of A and B greater than equal to 6 less than equal to 9. Third, cardinal number of A intersection B greater than equal to 0 less than equal to 2 and cardinal number of A intersection B greater than equal to 1 less than equal to 6. Okay friends, अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। if set A has 3 elements and set B has 6 elements, then क्या हो जाएगा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। given cardinal number of A equals to 3 and cardinal number of B equals to ऐसा दिया हुआ है। तो अब देखो ना A में B और C क्या है, देखो दो केसेस हो सकता है। केस 1 क्या हो सकता है A इंटरसेक्शन B 0 है, कुछ भी कॉमन हो उस केस में कार्डिनल नंबर ऑफ A and B क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B मींस 9 और दूसरा केस होता है केस 2 A इंटरसेक्शन B 3 हो जाए मतलब ये एलिमेंट पूरा का पूरा एक में आ जाए और कार्डिनल नंबर ऑफ A and B क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 minus 3 नहीं A में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। डॉक्टर हो गया मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गई 3 और ये मैक्सिमम वैल्यू इसी के बीच में रहेगा। ये 3 क्या हो सकता है कि A and B अच्छा A इंटरसेक्शन B पर हाँ A इंटरसेक्शन B मिनिमम क्या हो सकता है 0 और मैक्सिमम क्या हो सकता है 3। इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे यार कार्डिनल नंबर ऑफ A and B क्या होगा
greater than equal to a may be greater than equal to 6 or less than equal to 9 and cardinal number of a intersection b क्या हो जाएगा greater than equal to 0 or less than equal to 3 इसके बाद ज्यादा लिमिट कॉमन देख सकता है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग देखिए मेरे साथ। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of states at the number of states at comma such that the number of states at such that x is subset of a, x is subset of a, and x does not subset of where a equals to a b c d e a b c d e comma b equals to c comma b equals to c comma a first option is 26, second option is 27, third option is 28 and last option is 29। क्या मैंने बताया? The number of states x such that x is subset of a and x is not a subset of b। मतलब x जो है a का सबसेट हो लेकिन b का सबसेट नहीं। तो आप देखिए क्या हुआ बेसिकली c और d डिवाइड कॉमन है, इसके करस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2/4। अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे 2/5 2/5 minus 2/4। लिखेंगे सॉल्यूशन इज given x equal to a b c d and e, therefore possible subset of a equals 2/5 means 32। again let b c and d, therefore possible subset of b equals 2/2 means 4। therefore since x number of sets x such that since x is subset of a and x is not a subset of b, therefore number of subsets x equal to therefore number of subsets x equals क्या हो जाएगा 32 और -4 means 20 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 28 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम उसके बाद। एक बार देखिए आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट को हटा रहा हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपना सेट थ्योरी कंप्लीट होता है विथ न्यूमेरिकल एंड विथ प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी। कंप्लीट टॉपिक हो गया। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है, सजेशन हो, आप मुझे भेजिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा कि सॉल्व करके दूँ। और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन रिलेशंस एंड फंक्शन की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।